will do protect cotton textile industry. The term textile is derived from the Latin word texture, which means to be. Textile word is taken from Latin word texture, which means to be. And you know it very well. First industry set up in the world was cotton textile. Cotton textile industry was the first. And हम कहेंगे कि अगर हम बोले तो one of the oldest industry in the world, cotton textile. सबसे पहले इंडस्ट्री ब्रिटेन में सेटअप हुई. And then in India also, different parts of our country also. And first, हम कहेंगे कि मिल जो थी मिल was set up in India. और ये setup it's not given in the book, वैसे सुनो. It was set up by Richard Arkwright. Richard Arkwright ने first cotton mill set up की थी. And उसने क्या किया? मार्केट से एक्सपेंसिव मशीन्स खरीदी और उसने अपनी मिल सेटअप की. अब उसकी मिल में सारा काम एक ही छत में नहीं होता था. वो वर्क was done under one roof. पहले क्या होता था? मर्चेंट्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कई बार वो स्टेपलर के पास जाते, स्पिनर के पास जाते, है ना, मूवर के पास जाते, then to टायर. तो मर्चेंट्स को सारे काम घूम के करने होते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट रिचर्ड आर्कराइट जब मिल आई तो होल वर्क वाज डन अंडर वन रूफ. अब एक छत के नीचे ही सारा काम होना शुरू. There was no need to move from one place to another. Merchants अभी तक सुविधा नहीं चाहते थे. Work was done quickly under great supervision. अब जो पहले किसी के पास जाना, जैसे हर कोई डिले करता था काम में, तो अब डिले भी नहीं होता क्योंकि काम तो छत के नीचे हो रहा है. तो देयर वाज नो डिले. क्विकली होता था सारा वर्क और बहुत बेस्ट क्वालिटी आप कहोगे कि अब जो टेक्सटाइल को बनना चाहिए क्योंकि वहां पे चीटिंग नहीं होती. So weaving cloth from yarn is ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making clothes. Textile industry can be divided on the basis of raw material used in them. Fibers are the raw materials of textile industry. इसको भी हम classify करते हैं on the basis of raw material used by textile industry. Fibers के basis पे से डिवाइड किया जाता है. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen, and jute. Man-made fibers होते हैं that is nylon, polyesters, and rayon. ये man-made है. पहले आपको polyesters ये सारे कौन से हैं? Nylon, पहले ये कौन सी हैं? Man-made fibers. One of is natural fibers and next man-made fibers. Textile, which is the oldest industry in the world? It is also classified on the basis of raw material used by the industry value. Which materials? Man-made and natural fibers. Man-made and natural fibers. Give two examples of man-made fibers. Nylon and polyester. अगर मैं आपसे पूछूं, give two examples of natural fibers. Very good. Important. कोई भी. It is one of the oldest industries in the world. In the industrial revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques and looms. In the 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industry, first in Britain, later in other parts of the world. Today, India, China, Japan, USA are important producers of cotton textile. सबसे पहले ब्रिटेन में आई इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट केम इन वेरी वेरी. क्या तो कॉलोनी थी ना. इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट केम इन
और आपको एक बात बताऊं, इंडिया वाज फेमस फॉर फाइनल वैरायटी ऑफ कॉटन। सारी फाइनल वैरायटी कॉटन किधर जाती है? ब्रिटेन। और टू फीड द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और मैंने आपको बताया फर्स्ट मिल सेटअप इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में फर्स्ट मिल सेटअप हुई थी एंड दैट वाज सेटअप बाय रिचर्ड कॉकरैल। तो बाद में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। India has glorious tradition of producing excellent quality cotton textile. Before British rulers spun and hand woven cloth already had a wide market. I told you before also that India was famous for the finer variety of cotton and industries. India के cotton textile की demand पूरे world में थी. These people who England prefer to wear Indian cotton textile because of its better finishing touch and because of its finer quality. So India was famous and had wide market in those days. India के clothes की demand पूरे world में. Muslins of Dhaka, chains of Patna, calico of culture, and gold road, cotton robe, Burhanpur, Surat, and Baroda were known worldwide for their quality and design. But the production of hand-woven cotton textile was expensive and time-consuming. क्योंकि hand-woven जो कि आपको पहले भी आपने किया हुआ है, ये expensive थी. Indian cotton textile expensive थी as compared to mill-made cloth. पता है ना? और एक टाइम एक मिनट बहुत जल्दी बनाएगा cloth मशीन और अगर टाइम कंज्यूमिंग कौन है? एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी था और साथ में एक्सपेंसिव भी था. Traditional cotton textile industry could not face the competition from new textile mills of West, which produce cheap and good quality fabrics. Though mechanized industrial units. तो एक मिनट इसमें आप इतना याद रखो कि जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है ना, चाहे वो फाइनर वैरायटी की थी, बट एक्सपेंसिव भी थी, टाइम कंज्यूमिंग भी था, वो सब कुछ, वो compete नहीं कर पाई किससे? मशीन मेड से. मशीन मेड के साथ वो compete ही नहीं कर पाई. First successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. अब ये मैकेनाइज्ड मिल है, मशीन्स के साथ, हैंड वोवन नहीं है. First mechanized mill was set up in Mumbai in which year? First cotton textile mechanized mill was set up in Mumbai in which year? The warm moist climate, a port for importing machinery, availability of raw materials, skilled labor resulted in rapid expansion of industry in the region. वही लोकेशन, अगर हमने इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें क्या क्या चेक करना होता है वहां पे? अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, और साथ में पोर्ट फैसिलिटी ना, ताकि मशीन्स, उनको मशीन्स भी तो चाहिए थी, तो वो भी उन तक पहुंच पाए, और साथ में उनकी इंडस्ट्री का जो भी क्लोथ है वो दूसरी कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर पाए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों ही. तो ये सारी चीजें देखी गई. और इस रीजन में क्या हुआ? इन दिस रीजन वहां पे किसकी किसमें डेवलपमेंट हुई? ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हो गई. इन महाराष्ट्र, मुंबई वाली साइड इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू होगी. फर्स्ट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज सेटअप, मैकेनाइज्ड मिल वाज सेटअप इन 1854, क्योंकि वहां का क्लाइमेट, आप कह सकते हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल था, क्लाइमेट सुटेबल था, और साथ में पोर्ट फैसिलिटी थी, सब कुछ वहां पे था, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स थे वहां पे. तो वहां पे डेवलपमेंट जो थी वो बढ़ती चली गई. Initially, this industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat. गुजरात तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, अहमदाबाद एंड गुजरात, है ना. तो महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों ही क्या बनते चले गए? इंडस्ट्रियल रीजन्स. क्या बन गए? वहां पे इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हो गई. इन विच रीजन्स? महाराष्ट्र एंड गुजरात. क्यों वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हुई? बिकॉज ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट.
बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। अब आज की डेट में ये आर्टिफिशियल वे से करते हैं। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट होएगा ना तो थ्रेड टूटता नहीं है, उनका थ्रेड नहीं टूटता, तो इसीलिए वहां पे ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हुई। तो आज की डेट में अगर वो कहते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट सेटअप करना होता है तो ह्यूमिडिटी कैसे वो सेटअप करते हैं, आर्टिफिशियल वे से। एंड raw cotton is the pure and not way losing raw material, so this industry has spread to other parts of India, Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana and Puducherry, Panipat, some of the other important centers. यहाँ पे भी cotton textile industry है. Is it clear? Ahmedabad. About 1/3 of Indian textile industry's total production is exported. 1/3 प्रोडक्शन क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरी कंट्रीज को भेजते हैं. Ahmedabad is located in, firstly tell me in which state? Gujarat. On the banks of which river? Sabarmati river. First mill was established in 1850. आप मुझे बॉम्बे की मिल बताओ, बॉम्बे की मिल का ईयर 1850 and in Gujarat 1850. Ahmedabad is in Mumbai is in okay. The first mill was established in 1859. कहाँ पे? Ahmedabad. It soon became the second largest textile city of India. क्योंकि first कौन सी थी? Which was the first textile? Very good. First textile city of India. Second textile city. Ahmedabad, known as, referred as Manchester of India. Favorable locational factors were responsible for the development of the textile industry in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to cotton growing areas, क्योंकि वहां पे raw material easily available है, cotton growing region है, तो इसलिए this ensures easy availability of raw material. Climate is ideal for spinning and weaving. मैंने पहले बोला यहाँ पे thread जल्दी नहीं टूटता. Climate is also suitable. Densely populated state of Gujarat, Maharashtra provide both skilled and semi-skilled. वहां पे semi and skilled दोनों ही laborers easily available हैं. Well-developed road and railway network permits easy transportation of textile to different parts of the country, thus providing easy access to the market also. Mumbai port nearby facilitates import of machinery and export of cotton textile. अब एक मिनट, लोकेशनल, अब बताओ एडवांटेज, लोकेशनल सिस्टम बताओ, यहाँ पे क्या क्या चेक करा जाता है जब ये इंडस्ट्री मुंबई एंड क्यों गुजरात को ही सिलेक्ट किया गया? वाई मुंबई एंड अहमदाबाद? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉटन ग्रोइंग रीजन, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल. सेकंड, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, तो वहां पे क्या इजीली अवेलेबल है? स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड. एंड वाटर फैसिलिटी, साबरमती रिवर मैंने पहले बोला है, तो वाटर अवेलेबिलिटी है वहां पे. इजी एक्सेस टू मार्केट, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज गुड. और साथ में पोर्ट है, पोर्ट फैसिलिटी है. अगर मशीन्स उन्होंने दूसरी कंट्रीज से मंगवानी है, इंपोर्ट ऑफ मशीन्स, तो वो भी इजीली अवेलेबल है. अगर इन्होंने खुद की प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने हैं तो वो भी इजीली थ्रू पोर्ट वो कर सकते हैं. बट इन द रिसेंट इयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स. अब इसको कुछ, ये इसका डिक्लाइन चल रहा है इसका पीरियड. व्हाई? Several textile mills have closed down in Ahmedabad. Now, what's the reason why these mills were closed down? This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country, as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad. Ahmedabad की जो machines है ना, वो outdated हो चुकी हैं, उनमें कोई upgradation नहीं हुई.
जैसे जैसे, एक मिनट, हम घर में एक आपके पास, एक मिनट, आपका मोबाइल ही है, ठीक है, वो पुराना है, सारा सिस्टम उसमें पुराना है, तो आप उस पे जो जो न्यू टेक्नोलॉजी है जैसे है ना, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना अपना मोबाइल, आपको नया लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो ऐसे मोबाइल होते थे जिनमें व्हाट्सएप वगैरह ये फैसिलिटी कई लोगों के पास, हाँ, तो चेंज होता गया ना सारा सिस्टम। तो अहमदाबाद में ये प्रॉब्लम ये आई क्योंकि कंट्री के कितने पार्ट्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप होगी। अहमदाबाद की कितनी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो चुकी हैं, व्हाट्स द रीजन व्हाई? बिकॉज बंद हो चुकी हैं, शट डाउन, बंद। व्हाई इंडस्ट्रीज शट डाउन इन अहमदाबाद? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्यों बंद हो चुकी हैं वहां पे, क्यों डिक्लाइन हो रही है? वो रीजन इज आउटडेटेड मशीन्स, उनमें अपग्रेडेशन नहीं हो रही। जो जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो उनमें अभी भी वो आउटडेटेड सारे मेथड्स फॉलो कर रहे हैं। तो नई जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं, तो इसीलिए अहमदाबाद वाली मिल्स जो है, इंडस्ट्रीज जो है, वो शट डाउन हो रही है। नेक्स्ट इज ओसाका। अगर मैं पूछूं अहमदाबाद की प्रॉब्लम बताओ तो कैन यू राइट ना कि वो मशीन्स क्या होती जा रही हैं, वो पुरानी मशीन्स ही हैं, उसमें कोई अपग्रेडेशन। नेक्स्ट, जैसे हमने पिछले चैप्टर में कंपेयर किया था एग्रीकल्चर में अपने 2 रीजन्स को, किया था इंडिया एंड यूएसए, शायद किया था ना। सेम ईयर यू हैव टू कंपेयर, आपको अहमदाबाद विद ओसाका, you have to compare. Now listen, Osaka is important textile center of Japan, also known as Manchester of Japan. अब मुझे बताओ Manchester of India, Manchester of Japan, तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन Manchester of India and Manchester of Japan, तो you should know the names. Manchester of India, Manchester of Japan, तो आपको दोनों को कंपेयर करना है, वहां पे सोचने नहीं बैठ जाना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन है और मैनचेस्टर ऑफ जापान कौन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नो लिसन, क्या फर्क है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स, extensive plain around Osaka ensured that land was easily available for the cotton mills. अब एक मिनट, अहमदाबाद में हम कहेंगे कि लैंड इजीली अवेलेबल नहीं थी, अब हमें पता है हमने और इंडस्ट्रियल रीजन को बड़ा करना है, अपनी इंडस्ट्री अपने एम्पायर को और बड़ा करना है, तो हमारे पास लैंड ही नहीं है, हम बड़ा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अहमदाबाद में तो ये भी प्रॉब्लम आई। ओसाका में उनके पास सफिशिएंट लैंड थी, वो और उसकी ग्रोथ कर सकते थे अपनी इंडस्ट्री की। नो, इज इट क्लियर? एक तो सफिशिएंट लैंड नहीं थी, कहां पे सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल? ओसाका, वेरी गुड, ठीक। अब नेक्स्ट, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेल सुटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग, वहां का भी क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड है, बट इन अहमदाबाद वो ह्यूमिड अब क्लाइमेट आर्टिफिशियल वे से कर रहे हैं, वहां पे तो नेचुरली है। इज इट क्लियर? उधर आर्टिफिशियल वे से हो रहा है अहमदाबाद में, इधर नेचुरली है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ना उसको, इंडस्ट्री को, तो अहमदाबाद में तो आर्टिफिशियल वे से कर रहे हैं, वेयर एज इन ओसाका दैट इज नेचुरली है। रिवर योडो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल, labor is easily available, location of port facilities, import of raw cotton and exporting textiles. The imported raw materials, cotton is imported from Egypt, India. अब उसको ओसाका को कॉटन कहाँ से मिलती है? सुनो, इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएसए, जबकि अहमदाबाद को तो कॉटन, वो तो है ही कॉटन ग्रोइंग रीजन है, वेयर एज ओसाका को कॉटन मंगवानी पड़ती है। कहां से मंगवाता है ओसाका? यूएसए, इंडिया, चाइना, है ना। The finished product is mostly exported and has good market due to good quality and low price. Though it is one of the important textile cities in the country, of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries. अब यहाँ पे भी क्या हो गई है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉटन टेक्सटाइल नहीं है, वहां पे और इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो चुकी हैं, सच एज iron and steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment and cement industry.
ओसाका में सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही नहीं है, वेरियस अदर इंडस्ट्रीज now have been set up in Osaka, such as iron and steel, machinery or cement industry, automobile, shipbuilding. These industries have also been set up in Osaka. कहाँ पे outdated machines यूज हो रही हैं, कहाँ पे हम कहेंगे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वर्क हो रहा है, ओसाका. कहाँ पे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी, कहाँ पे नेचुरल वे से, ओसाका. ओसाका इज नॉट कॉटन ग्रोइंग रीजन, बट फिर भी यहाँ पे कॉटन दूसरी कंट्री से आ रही है. कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं? ओसाका सिर्फ एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे वेरियस अदर इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन ओसाका. और वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? यू शुड नो देयर नेम्स. You should know their names. Is it clear?